हेलो दोस्तों, नीट साइंस कॉलेज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। दिस चैनल इज टोटली मेड फॉर नीट एग्जाम एस्पायरेंट्स। हमारा वादा आपका स्कोर आउट ऑफ लाना। तो चलिए आज के इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। आज का इस सेशन का पॉइंट है दैट इज डिफरेंस बिटवीन फोर फंडामेंटल फोर्सेस एंड देयर unification or towards the unification of forces. That 2 points of CBSE 11th physics physical world का देखने वाले हैं. So here first of all we'll see difference. So difference में पहला तो पॉइंट है, चार फोर्स जो फंडामेंटल फोर्स है उसमें तो उनका स्ट्रेंथ देखेंगे. So everyone knows that strong nuclear force has the rank 1 in their strength. So suppose it is a 1, suppose it is 1 and now remaining 3 will compare with this strong nuclear force. So that is जितने भी रह गए तीनों तीनों भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ कंपेयर करके यहाँ पे कितने टाइम्स वो स्मॉलर है वो बताया गया है. सो दिस इज स्मॉलर देन दिस 10⁻² टाइम्स. ओके 0.01 टाइम्स. ओके then this is weak nuclear force is very much weak. It is 10⁻13 times of that strong nuclear force. Gravitational force is 10⁻39 times that of gravitational force, sorry, that of strong nuclear force. Next we will see the point that is what are their effects. Effects देखेंगे. Okay, here if you want a trick that you can just keep in mind, आप ध्यान में रख सकते हो, that is SEWG CUG करके आप ध्यान में रख सकते हो. Okay, now we will go for that. What are the effects of this all fundamental forces? Strong nuclear force, if it is there, everyone knows that strong nuclear force is nothing but to combine to make a neutral combination. उस न्यूक्लियस को न्यूट्रल कर देता है and holds inside it holds the neutron and proton, that is न्यूक्लियंस को होल्ड करता है, स्टेबल करता है न्यूक्लियस को. ये उसका इफेक्ट्स है. आफ्टर दैट विल सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. द इफेक्ट इज नथिंग बट एवरीवन नोज दैट like charges repel and unlike charges attract. So attraction and repulsion force are there. Then weak nuclear force, everyone knows that decay. There is that is process happening, that radioactive decay, in which higher mass is converted to lower mass and emitting some radiations. And we can observe that force, that is the effect of this force. उस force की वजह से ये decay हो रहा है. Gravitational force, what is the effect? Everyone knows that it attracts every other objects. So these are the effects. Now we'll go for the particle that experience this force. Okay, strong nuclear force is experienced by the quarks and gluons. Okay, then electromagnetic force is experienced by that electrically charged positive charge and negative charge. Weak nuclear force that experienced by quarks and leptons. Gravitational force experienced with the all particle which have their masses. Okay, now we will see their force carrying particle. ये force कौन से particle carry करते हैं? So strong nuclear force were carried by gluon carry करता है. Okay, electromagnetic force that carried by photon. Weak nuclear force that carried by bosons W and Z. Okay, and gravitational force is carried by graviton, having mass 0, having spin 2. Here photon has having mass 0, having spin 1. So this is what and gluon is what, just that is the न्यूक्लियस आप बोल सकते हो, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है उससे उसके मास फोर्स को हम ग्लूऑन बोल देते हैं. सो दैट एक कैरियर प्रैक्टिकल फोर्स कैरियर पार्टिकल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कैरी करते हैं ग्लूऑन्स द्वारा, किए जाते हैं ग्लूऑन्स द्वारा. सो हियर यू हैव गिवन दिस डायग्राम that proton they are exchanging 5 mesons, okay, while they are interacting with each other. And here you know that repulsion attractive forces, and here some beta decay is given, is that neutrino and then some electron emission there is, and the mass is getting converted into lower mass nuclei. And here is the attraction of the force, gravitational force attraction. Okay, so these points also we have seen. Now we will see the range. Range is what, everyone knows that how much is range. So strong nuclear force is a short range force. Okay, short range यानी मीन्स न्यूक्लियस के रेडियस तक ही वो सीमित होता है, यानी डायमीटर तक ही, उसके बाहर वो सीमित नहीं होता है. सो आउट ऑफ दैट मीन्स
जैसे जैसे रेंज बढ़ते जाएगा उसका इफेक्ट कम होते जाएगा. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, यू नो दैट दे आर इनफाइनाइट रेंज, किसी भी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हो सकते हैं. देन वीक न्यूक्लियर फोर्स, इट हैज आल्सो, इट इज वेरी शॉर्ट रेंज, इससे भी छोटा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर से भी ये छोटा है, तो इट इज वेरी शॉर्ट, दैट इज 10⁻⁻18 मीटर. दिस रेंज इज इन मीटर. ओके. And gravitational force, it is also a long range distance force. Okay, so this is all about your that is difference between four fundamental. Now अभी हम देखते हैं towards unification of forces. यूनिफिकेशन क्या होता है? यूनिफिकेशन यानी बहुत सारे फोर्स को एक में कन्वर्ट करना, एकीकरण करना. सो यहाँ पे यूनिफिकेशन मतलब combine, we have to combine all fundamental forces in a single force. What if, क्या होता अगर नेचर के सभी फंडामेंटल फोर्स एक ही कॉम्प्रिहेंसिव फोर्स में कन्वर्ट हो जाते? सो दैट इज थ्योरी ऑफ एवरीथिंग. अ सिंगल फोर्स इज, if we unified all the forces and you will get at last a single force, so that whole world is on the base of single force. ये हो सकता है. So here physicists tries too many. So there was a race. So in this race, physicists unify all the forces, but someone got success, someone get unsucceed. So किसी को यश मिलता है इसमें, किसी को नहीं मिलता है. So that story we will see over here. Okay, how much physics has did progress in this. So everyone knows that because of this unification, because of basis of इसी यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस के बेसिस के ऊपर ही फिजिक्स ने इतनी प्रगति कर ली है. ओके, सो दिस इज द मेन क्वेस्ट, बेसिक क्वेस्ट ऑफ द फिजिक्स. और फिजिक्स के इसी ही प्रोग्रेस ने, फिजिक्स के जो भी प्रोग्रेस है उसने ही हमें यहाँ पे यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस की तरफ लेके गए. सो दैट इज सेड इन द टेक्स्ट बुक. नाउ they were saying that unification of forces is nothing but that idea which is possible to view all the nature forces combined in a single force or in a single comprehensive force. So that is nothing but the unification of forces. किसी फोर्सेस को एक ही फोर्स में किसी और फोर्सेस को मिला के या यूनिफाई करके किसी थ्योरी के बेस्ड, तो उसे हम यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस बोलते हैं. तो here we will see first scientist who contribute in this unification of forces, that is Isaac Newton. Isaac Newton was there. So he was unified that law of motion and law of gravitational force. जो भी है ग्रेविटेशनल फोर्स के जो भी लॉज थे, these laws he showed that they are applied to both celestial bodies and terrestrial bodies. सिलेस्टियल एंड टेरेस्ट्रियल बॉडीज के ऊपर उन्होंने अप्लाई किया था दोनों डोमेन के लिए, फॉर सिलेस्टियल डोमेन एंड टेरेस्ट्रियल डोमेन. ओके, फॉर सिलेस्टियल डोमेन एंड टेरेस्ट्रियल डोमेन दोनों के लिए अप्लाई करके दिखाया था कि लॉज ऑफ मोशन एंड लॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स आर गेटिंग अप्लाइड ऑन बोथ. Celestial means what? In a space bodies, and that is universal bodies, and terrestrial means which is on the earth. Okay, which is on the land of the earth. So that दोनों के लिए उन्होंने अप्लाई करके दिखाया. सो हियर ही यूनिफाइज इन टू मैकेनिक्स अ सिंगल फोर्स. ओके, अंडर द बेसिस ऑफ दिस फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स के बेस और लॉज ऑफ मोशन के बेस के ऊपर उसने दोनों भी डोमेन में, डिफरेंट डोमेन में या मैकेनिक्स में उन्होंने अप्लाई करके दिखाया. सो आफ्टर दैट देयर कम्स टू साइंटिस्ट, दैट इज माइकल, दैट इज ओरस्टेड, हैंस क्रिस्टियन ओरस्टेड. इन्होंने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके, एक्सपेरिमेंटल डिस्कवरी करने के बाद बताया. सो हियर दैट अनदर साइंटिस्ट इज आल्सो देयर, माइकल फैराडे. बोथ हैव ग्रेट कंट्रीब्यूशन बिहाइंड दिस यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस. उन्होंने यूनिफाई कर लिया इलेक्ट्रिक फिनोमिनन एंड मैग्नेटिक फिनोमिनन को, दोनों को मिला के एक सिंगल में कन्वर्ट कर दिया. सो उसे उन्होंने बोल दिया कि दैट इज दे आर नथिंग बट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. सो दे यूनिफाइज दिस टू फोर्सेस, दोनों फोर्स को यूनिफाई करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऐसा कंबाइन में लिख दिया, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये नया कंसेप्ट हमें दे दिया. सो हेंस दे शोड दैट दे आर इनसेपरेबल, वो कभी अलग नहीं होते.
दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है या यूनिफाइड है. ओके, सो दे आर इनसेपरेबल. आफ्टर दैट देयर कम्स दैट इज मैक्सवेल, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, James Clerk Maxwell. So here he explained about in 1873. ये 1687 में न्यूटन ने यूनिफिकेशन के बारे में बताया था. आफ्टर दैट 1820 एंड 1830 में ओस्टेड एंड फैराडे ने बताया था कि देयर इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फिनोमेनन एंड मैग्नेटिक फिनोमेनन, दे आर लिंक्ड विद ईच अदर, दे आर इनसेपरेबल. सो दे गिव्स अस अ न्यू यूनिफिकेशन दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. सो उन्होंने सिंगल में कन्वर्ट कर दिया दोनों को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. सो हियर नाउ केम्स जेम्स क्लार्क मैक्सवेल इन 1873 and he showed that over there that this electromagnetism, okay, he unified electromagnetism and that is another force is there, that force is electromagnetism and optics. यानी कि ये उन्होंने क्या किया, जैसे कि इलेक्ट्रिक यानी चार्जेस होते हैं, मैग्नेटिक यानी कोई आयरन होगा, मैग्नेटाइज आयरन होगा, या कोई ऑप्टिक्स यानी लेंस होगा. तो इन तीनों के बीच में उन्होंने कुछ पाया, उन्होंने कुछ लिंक पाया. देयर इज समथिंग लिंक बिटवीन दिस थ्री थिंग्स, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिक एंड ऑप्टिक्स. तीनों के बारे में उन्होंने कुछ लिंक दिया. सो हेंस दे स्टार्टेड टू यूनिफाई देम एंड उन्होंने यूनिफाई किया अंडर द लॉ यूजिंग दिस. ही आल्सो शोड दैट द लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. सो इसी कारण उन्होंने लाइट को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बता दिया. Okay, so on the basis of this they have done this electromagnetism and optics, they have unified it. So इस तरह हम लाइट को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करके भी कंसिडर करते हैं because of Maxwell's. After that there comes Isaac Newton in 19th century, beginning of the 19th century, that is Albert Einstein comes and he also tried to unify these forces, but अभी इन्होंने बहुत ही साहसिक कार्य किया था कि जैसा कि वो बोल रहे थे कि दैट दे आर ट्राइंग टू यूनिफाई ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स. ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इन दोनों को वो यूनिफाई करने जा रहे थे, जो भी फंडामेंटल थे दोनों. सो दे ट्राइड इट फॉर 25 years, रिसर्च ऑन इट, बट उन्हें हाथ में कुछ भी नहीं लगा. सो दे नॉट गेट सक्सीडेड इन दैट, they are not get succeed in unifying them. Okay, so this is all about Albert Einstein in the beginning of the 19th century. But after that the Nobel Prize winner, that is everyone knows that three scientists, they have did that they found that at high energy, किसी ज़्यादा एनर्जी के ऊपर जब जाते हैं वहाँ पे कंसिडर करते हैं उनको ज़्यादा एनर्जी पे, then that forces nothing but that is they have shown here that weak forces and that electromagnetic forces, इन दोनों को उन्होंने कंबाइन करके हमें नया फोर्स दे दिया, इलेक्ट्रोवीक फोर्सेस. सो ये नया फोर्स उन्होंने यूनिफिकेशन करके एट हाई एनर्जी दे फाउंड दैट ऑल दिस फोर्सेस गेटिंग इक्वल टू दिस इलेक्ट्रोवीक फोर्सेस. सो हियर ये देने वाले नोबेल प्राइज विनर है, दैट इज अब्दुल सलाम, पाकिस्तानी, ओके, physicist. And then there is that is Sheldon Glashow and Steven Weinberg. So they have did this experiment in 1979. Okay, after that there have physicist, अभी physicist यहाँ पे अनसक्सेस मिला, यहाँ पे not succeed. Okay, बट फिजिसिस्ट यहाँ पे रुके नहीं, उन्होंने बहुत ही डबल स्पीड से, डबल जोश से, एंथुजियास्टिकली, जिलसली उन्होंने और उसमें इन्वेंशंस करना, यूनिफिकेशन करना और करने के कार्य को और ज़्यादा बढ़ाई दी. ठीक है, उसमें और ज़्यादा परफॉर्मेंस दिए. यानी कि देखिए उनके बाद ये अब्दुल सलाम, शेल्डन ग्लाशो, स्टीवन वेन्सबर्ग 1979 में इन्होंने भी वीक न्यूक्लियर फोर्स जो होता है एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उनको यूनिफाई करके एक नया फोर्स एट हाई एनर्जी वो यूनिफाई करके बताया कि देयर इज अ इलेक्ट्रोवीक फोर्स एट हाई एनर्जी. सो हियर दे हैव आल्सो अटेम्प्टेड टू यूनिफाई, और बहुत सारे फिजिसिस्ट ने अटेम्प्ट भी किया इलेक्ट्रिक वीक फोर्स को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के साथ. देन दे हैव इवन अटेम्प्टेड दिस फोर्स आल्सो, ग्रेविटेशनल फोर्स और ऑल फंडामेंटल फोर्सेस, जितने भी फंडामेंटल फोर्स उनको यूनिफाई करने का जो भी है अटेम्प्ट किया गया है.
आफ्टर दैट देयर कम्स इन 1984 में भी कुछ साइंटिस्ट है, कार्लो, that is Carlo Rubbia, and after one more physicist is there, that is Simon Vandermeer. Okay, Simon Vandermeer. So these are the some physicists. They have their performance is in 1984. They have performed that this they have performs the prediction of, उन्होंने prediction किया था the theory of electroweak force, prediction of theory of electroweak force. ओके, सो इस फोर्स की जो थ्योरी है उसका प्रोडक्शन किया था उन्होंने एट हाई एनर्जी पे. ओके, सो दिस कार्लो रूबिया एंड साइमन वेंडरमेयर 1984. ओके, तो दोस्तों ये था आज का पॉइंट. फिर मिलेंगे किसी शानदार वीडियो के साथ. अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें. नए सब्सक्राइब हो तो सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलें. फिर मिलेंगे शानदार वीडियो के साथ. तब तक के लिए थैंक यू.